اس طرح 100 مرتبہ جانا ہے اور بہت انعامات ہے. روزانہ ایوری ڈے 100 مرتبہ درود پڑھے. اگر ہم انعامات پر انعامات گناتے جائیں تو آدھا پونا گھنٹہ جائے. میں صرف 3 انعام بتاؤں گا انشاءاللہ. کون کون تیار ہے سننے کے لیے؟ پھر ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کریں اور بولو پڑھیں گے روزانہ کتنی مرتبہ؟ کیا پڑھنا ہے؟ ہاں سنتے جاؤ، انعامات سنتے جاؤ. سب سے پہلا ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد رسول اللہ. آواز نہیں آ رہی، بلند آواز سے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم رحمت للعالمین سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی، ہمارے نبی نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ 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 ایوری ڈے 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھتا رہے گا، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ اپنے ہاتھوں سے تیری پیشانی پر لکھے گا، اللہ اپنے ہاتھوں سے ہماری پیشانی پر لکھے گا براءۃ من النار. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے ہماری پیشانی پر لکھیں گے یہ میرا وہ بندہ ہے، یہ میری وہ بندی ہے جو روزانہ میرے مصطفیٰ پر 100 مرتبہ درود پڑھے. اللہ اپنے ہاتھوں سے لکھیں گے جاؤ میرا بندہ میری بندی، جہنم تو دور کی بات ہے جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. سب ساتھ میں سبحان اللہ بولے سبحان اللہ. یہ تو کون سا انعام ہو گیا؟ انہیں آواز نہیں آ رہی. کون سا انعام ہو گیا؟ دوسرا. یہ تو جمعہ کی رات ہے نا، اس سے آج یہ ارادہ زندگی بھر کا ہوگا انشاءاللہ. یہ نہیں کہ صرف ربیع الاول میں پڑھنا ہے یا ربیع الاخر میں پڑھنا ہے یا آپ کو پڑھنا ہے. جب تک ہماری جان میں جان رہے گی بولو انشاءاللہ 100 مرتبہ صلی اللہ پڑھیں گے نا. چلو دوسرا انعام ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا قیامت میں ہمارے نبی کے سامنے حوض آئے گا. کیا آئے گا؟ حوض کوثر. بولو حوض. سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں میرے مصطفیٰ کی شان ہوگی، آپ کے سامنے حوض کوثر ہوگا. دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے، بائیں طرف حضرت عمر فاروق ہوں گے، سیدھے دائیں طرف میں حضرت عثمان ذو النورین ہوں گے، سیدھے بائیں طرف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. ہمارے نبی فرماتے میرے امتی آگے بڑھیں گے اور ہمارے نبی نے فرمایا میرے حوض کوثر کا پانی. سبحان اللہ. ایک جملے پر ہمارے نبی نے فرمایا میرے حوض کوثر کا پانی احلی من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا، ابیض من اللبن، دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا، ابرد من الثلج، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا. ہمارے نبی فرماتے سنو، ہمارے نبی فرماتے ابو بکر و عمر و عثمان و علی موجود ہوں گے اور سامنے سے میرے امتی آئیں گے. ہمارے نبی فرماتے میرا گھر وہ امتی، ہمارے نبی فرماتے میرا گھر وہ امتی جو روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے. ہمارے نبی فرماتے میں اپنے ہاتھ مبارک سے اسے جام کوثر عطا کر دوں گا. ہمارے نبی اپنے مبارک ہاتھ سے کیا دیں گے؟ جامع کوثر دیں گے. معلوم ہے اس کے بارے میں لکھا کہ ہمارے نبی جب دیں گے بولے انشاءاللہ، ہم لیں گے بولے انشاءاللہ، ہم ایک گھٹ پیئیں گے بولو انشاءاللہ. ہمارے نبی فرماتے من شرب منہ قطرہ لم یظمأ ابدا. ہمارے نبی فرماتے جس نے ایک گھٹ پی لیا اب کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، جنت میں بھی پیاسا نہیں ہوگا. جنت میں پیے گا تو شوق کے مارے پیے گا مگر پیاس کے مارے کبھی نہیں پیے گا. تو میرے پیاروں 100 مرتبہ درود پڑھنے والا پیشانی پر لکھا ہوگا جہنم تو دور کی بات جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. 100 مرتبہ درود پڑھنے والا نبی کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب ہوگا. پڑھیں گے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنی باتیں ہو گئی، کتنے انعامات ہو گئے؟ آخری انعام سن لو. یہ 2 انعام سے اتنا تو پتہ چل گیا، عقل میں آ گئی بات کہ جو 100 مرتبہ درود پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا.
क्योंकि पहला इनाम क्या था, जहन्नम का धुआं भी करीब नहीं आएगा। तो जब जहन्नम नहीं आएगी तो क्या आएगी सामने? अरे बोलो ना, सामने क्या आएगा? आप लोग बोल क्यों नहीं? दो ही तो चीज है, जन्नत जहन्नम। जब जहन्नम नहीं है, कैंसल, तो क्या बाकी रहा? ये बात तो हमको पहले ही मालूम हो गया कि जो 100 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना कहेगा उसके लिए जन्नत तो फाइनल हो गई। लेकिन सवाल है कि 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला जन्नत में कहाँ जाएगा? क्योंकि अल्लाह ने जन्नतें बहुत बनाई है, जन्नत में अलग अलग मंजिलें, अलग अलग मकाना, अलग अलग हालात, तो जन्नत में कहाँ जाएगा? अब पूरा मजमा कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। अब यार मोहब्बत से कह दो, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला सुभान अल्लाह बोलते जाना। हमारे नबी ने फरमाया 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला, रोजाना पढ़ने वाला, हमारे नबी फरमाते क़यामत में मैं उसकी सिफारिश करूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी फरमाते सिफारिश करूंगा तो वो जन्नत में जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन जन्नत में कहाँ जाएगा? हमारे नबी ने फरमाया जहां शहीदों को क़यामत के मैदान में और जन्नत में जहां शहीदों को खड़ा किया जाएगा, 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाले को भी जन्नत में उसी जगह पर खड़ा कर दिया जाएगा। जहां हजरत हमजा होंगे, बोलो सुभान अल्लाह। जहां हजरत अम्मार होंगे, बोलो सुभान अल्लाह। जहां हजरत यासिर होंगे, बोलो सुभान अल्लाह। जहां गज़वे उहद के 70 शुहदा सहाबा होंगे, बोलो सुभान अल्लाह। जहां मालूम नहीं कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में शहीद होने वाले होंगे, हमको भी वहीं पर खड़ा किया जाएगा और हम अल्लाह को कहेंगे, अल्लाह मैं तो शहीद नहीं हुआ, अल्लाह यहाँ तो सब शहीद शुहदा, अल्लाह मैं तो शहीद नहीं हुआ। अल्लाह फरमाएंगे मेरा बंदा मेरे मुस्तफ़ा पर रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ता था ना, जो मरतबा मैंने शहीदों को अता किया वही मरतबा मैंने तुझे भी अता कर दिया। तो अब वो दाएं वाले और ये सामने वाले हाथ ऊपर करके बोले, मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। रोजाना कितनी मरतबा दरूद? कब से शुरू करेंगे? आज रात, जुमा की रात, मुबारक बहारों वाला महीना। एक बात पक्की हो गई इंशाअल्लाह। चलो एक बात मैं आपको एक एक बातें बताते हुआ आगे बढ़ता जाऊंगा। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ तो जिन्नत वाली बात बताओ, हाँ या नहीं? मैं ना बोलो तो नहीं। मैं इतना थका हुआ हूँ, सही में इतना थका हुआ हूँ कि बिल्कुल हिम्मत नहीं, क्योंकि आदमी जब सफर करके आता है बड़ा थका थका रहता है। आप अभी कहोगे ना जाओ तो मैं चला जाऊंगा इंशाअल्लाह, लेकिन खाली नहीं जाऊंगा। फीस दे देने का भाई, फीस दे देने का, खाली खाली यार। और मैं मांग के जाऊंगा, मांगूंगा, दोगे ना कालीपुर वालों? कितने तो कालीपुर में जुमा में मेरे पास बयान करवाए, मौलाना आपने भी देखा है कितने बयान करवाए। मुन्ना भाई ने कितनी मरतबा मेरे पास बयान करवाया, कितने स्टेज प्रोग्राम करवाए, कभी जनता मार्केट में कितने प्रोग्राम करवाए। लेकिन ये कम वक्त सूरत वाले बड़े कंजूस नहीं बने। लेकिन आज नहीं होंगे, आज नहीं होंगे इंशाअल्लाह। हाँ तो बोल रहे, अभी तो हाँ कोई खुश तो कर देते। देखो मौलाना शादाब कितने खुश है, पूरी दुनिया ने कहा, चांदनी भाइयों ने कहा हुआ, क्योंकि अपनी बीवी को देख कर आया। ये बड़ा अजब मामला है, बीवी वाला मामला है। ये छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ ना, तुम्हारे बच्चे ये छोटे बच्चों का मामला बड़ा अजब है। मालूम है एक बाप बड़ा कंजूस है, इसकी तरह होगा। अपने बेटे को ले गया फ्रूट मार्केट में, ले गया कहाँ? फ्रूट मार्केट में। बेटे को कहा, बेटा जे भी तने जोए ना, मैंने केवालू वो तारो पप्पा। तो बेटे ने देखा चीकू, देखा क्या देखा? चीकू कहाँ? चीकू देखा बेटा, तो कहता पप्पा ओ चीकू ले लो ना, चीकू। तो अब बाप तो बड़ा कंजूस हिसाब की तरह, तो क्या कहा ना, एक तो चीकूड़ी छे, बड़े बड़े चीकू तो गोवा में मिलते हैं। बेटा बोला इसको मतलब दिलाना। आगे गया तो कहा पप्पा पप्पा वो दुकान पे संतरा बहुत अच्छा है। लगा ये तो संतूरी छे, बड़े बड़े संतरे तो गोवा में मिलते हैं। फिर आगे गया थोड़ा तो बेटे ने देखा कि वहाँ एप्पल बहुत अच्छे, तो कहा अब्बा ये सफरजन एप्पल, तो कहा ये तो सफरजंदड़ी छे, बड़े बड़े सफरजन तो कहाँ मिलते? तो बेटा समझ गया अब्बा कंजूस से कुछ दिलाने वाला नहीं। अब घर पे आ गया, घर पे आया तो अब्बा ने कहा, पप्पा ने कहा लेसन करो, लिखो लिखो, स्कूल में जाना है, एग्जाम है। और वो बेटा थोड़ी देर लिखा और फिर सब फेंक दिया, किताब भी फेंक दिया, पेन भी फेंक दिया, पेंसिल भी फेंक। तो अब्बा ने गुस्से में कहा पढ़, पढ़ेगा नहीं, जाहिल बनेगा।
तो बोलता है पप्पा मने कहीं केवानो नहीं। क्या बोला? पप्पा मने कहीं। तो माँ खड़ी हो गई, पप्पा के सामने बोलता है, नालायक पप्पा के सामने बोलता है, बोलता वो पप्पा नहीं है, पप्पूड़ी है। बड़े बड़े पप्पा तो गोवा में मिलते हैं। साथ भाई पप्पूड़ी मत बनिए। खैर आप लोग हंसे, थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जो टॉपिक पे मैं जा रहा हूँ ना, जिन्नात वाला टॉपिक। घर में जिन्नात विन्नात तो नहीं ना आपके घर में? नहीं ना? कुछ लोगों को बड़ा डाउट होता है, बड़ा जिन्नात का इतना डाउट होता है। हम मौलाना शादाब साहब मेरे पास बहुत सूरत वाले आते, कहते मौलाना एक बार तो मेरे घर में आओ, एक बार। मैंने कहा हुआ क्या इसको इतना कारी अहमद अली याद आ रहा है, एक बार मौलाना जरा वो चेक कर लेता है। क्या होता था? रात को आवाज आती है, आपको आवाज आती है। चलो आज लेकिन मैं जो जिन्नत का वाकया सुना रहा हूँ, सब कह दो सुभान अल्लाह। ये वलियों वाला महीना है, नबियों वाला महीना है। बहुत प्यारी बात सुनाने जाऊंगा, सब सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, अगर आप किताब उठाओगे ना और उलमा को पूछोगे, ये ऐसे अल्लाह के वली है जिन पर बड़ी बड़ी किताबों में नाम आता है। आप लोग नाम याद रखें, हजरत सिर्री रहमतुल्लाह अलैह। साथ में बोलोगे तो अच्छा लगेगा, हजरत सिर्री रहमतुल्लाह अलैह। ये वलियों में इनका नाम आता है। एक मर्तबा ये हजरत सिरी, अब सब लोग बराबर कान खोल कर सुनना और तवज्जो से सुनना। हजरत सिरी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा ऐसे ही शाम का वक्त था, रात को ईशा के बाद का वक्त था, और वो जंगल में जा रहे थे, जंगल में जा रहे थे। और चूंकि अल्लाह के वली थे, अल्लाह के वली वही होते हैं, और हजरत सिरी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे हैं और कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, और चले जा रहे। अचानक हजरत सिरी कह रहे कि चारों तरफ पहाड़ी इलाका है और मैं जंगल में अकेला अकेला जा रहा हूँ। और एक बात याद रखना, जो अल्लाह वाला होता वो किसी से डरता, यानी बोलो ना, अल्लाह वाला किसी से डरता। अल्लाह का वली वही होता है ना, दुनिया में डरता है, और बोलो सुभान अल्लाह, आखिरत में कोई गम भी नहीं होता। बोलो दुनिया में डरता नहीं, आखिरत में कोई गम भी नहीं होता। ये कौन होता? अल्लाह का वली होता, जिसको अल्लाह ने फरमाया खला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा वली बंदा, मेरी वलिया बंदी वो है, दुनिया में किसी का डर नहीं होगा, आखिरत में कोई गम नहीं होगा, ईमान वाला होगा, गुनाहों से बचने वाला होगा। अल्लाह फरमाते लकुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह कहते मेरा वली बंदा होगा, दुनिया भी तेरे कदमों में, जन्नत भी तेरे कदमों में। बोलो सुभान अल्लाह। कौन से अल्लाह के वली का नाम मैंने लिया, जरा जल्दी बताओ? हजरत सिरी। और सन्नाटे में जा रहे, कुरान पाक की तिलावत कर रहे, अल्लाह अल्लाह जिक्र कर रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे। अचानक देखा कोई भी नहीं, ना दाएं ना बाएं ना आगे पीछे कोई नहीं। अचानक आवाज आई अस्सलामु अलैकुम। सीधी वहां ठहर गए, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, तो कोई है तो नहीं। तो हजरत सीधी डरे नहीं, हम होते तो मालूम नहीं क्या हालत होती। हजरत सिरी रहमतुल्लाह अलैह ने खुलकर कहा भाई कौन है, अगर इंसान है तो सामने आ जा, जिन्नात है तो सामने आ जा, कोई फरिश्ता है तो सामने आ जा। बस इतना कहा कि एक जिन, बोलो सुभान अल्लाह, इतना इंसान की शक्ल में, खूबसूरत शक्ल में, खूबसूरत बालों वाले, खूबसूरत कपड़े वाले एक जिन्नात सामने आए और कहा मैं था जिसने तुमको सलाम किया। तो हजरत सिरी ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम, बोलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हजरत सिरी ने पूछा कि आप कौन हैं? मैं जिन हूँ। अब सुनना, हजरत सिद्दीक़ फरमाते मेरा नसीब अब खुल गया। मैंने कहा कि आप यहीं रहते हो? कहा नहीं, इसी जंगल में रहता हूँ। लेकिन वो जो जिन थे ना, आंखों में आंसू थे। फरमाया मैं उन जिन्नातों में से हूँ जिन जिन्नातों ने डायरेक्ट जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की है। बस इतना कहा कि मैं उन जिन्नातों में से हूँ जिन्होंने डायरेक्ट अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की है। और वो जिन्नात ने रोते रोते कहा कि कुरान करीम में जिन जिन्नातों का जिक्र आया है और जिन जिन्नातों की तारीफ आई है, वहां मैं भी मौजूद था। बोलो सुभान अल्लाह। ओ हजरत सिरी तो जैसे पूरा बदन पसीना पसीना वाला हो गया, इतना जल्दी आगे बढ़े और वो जिन्ना जैसे भी थे उनके हाथ पांव गए, जाकर उनके हाथ को थामा और चूम
लिया, कहा इसलिए नहीं चूमता हूं कि तुम जिन्नात हो, इसलिए चूमता हूं कि तुम्हारा हाथ मेरे नबी के मुबारक हाथों से मिला है। बोलो सुभान अल्लाह। और हजरत सिद्दीक ऐसे बैठ गए, हालांकि वो जिन्नात सामने, ये ऐसे बैठ गए जैसा कोई तालिब इल्म बैठता है, जैसा कोई स्टूडेंट बैठता है, एकदम आजीजी के साथ, इनकी सारी के साथ बैठ गए कि तुम इतने बड़े हो कि तुम्हारा जिक्र कुरान में भी आया है, और कुरान में आया है जिन्नातों का जिक्र। बोलो आया है ना? आया, बाकायदा जिक्र आया है कि हमारे नबी ने कुरान पढ़ा और सारे जिन्नातों ने सुना। बोलो हमारे नबी ने पढ़ा और जिन्नातों ने सुना। अल्लाह ने फरमाया समिअना कुरानन अजबा यहदी इला रुश्द फआमन्ना बिही वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तखज़ साहिबतन वला वलदा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते इन जिन्नातों को देखो, बड़े गौर व फिक्र से ये कुरान सुन रहे हैं और मेरा मुस्तफा कुरान पढ़ रहे हैं। पढ़ने वाले मुस्तफा, सुनने वाले खैर, ये तो कुरान करीम में लिखा हुआ है। अब हजरत सिद्दीक, वो अल्लाह के वली का नाम याद रखना, एक स्टूडेंट की तरह सामने बैठे, कहा आप तो हमारे उस्ताद हो के उस्ताद हो, आपने डायरेक्ट हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा, आपके हाथ मुबारक नबी के मुबारक हाथों से मिले और आपका जिक्र कुरान में आया। तो अब हजरत सिद्दीक ने क्या कहा, मालूम नहीं आइंदा आपकी और मेरी मुलाकात कब होगी, लेकिन मुझे इतना बता दो कि आपने जब हमारे नबी से मुलाकात की तो मेरे नबी ने कौन सी ऐसी अच्छी बात कही जो आपने अपने कानों से सुनी, आज मुझे वो सुना दो, इंशाअल्लाह हम अमल करते रहेंगे। बोलो अमल करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अब बयान करने वाले कौन है? जिन्नात। लेकिन किससे बयान कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल पाक। क्या फरमाया मालूम है? वो जिन्नात कहते हैं मेरी आखिरी मुलाकात जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई तो जिन्नात कहते हैं मैंने खुद पूछा था कि अल्लाह के रसूल कुछ नसीहत कर दीजिए ना, मुझे क्या करना चाहिए जिंदगी में वो बता दीजिए ना। तो वो जिन्नात कहते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 नसीहतें की है। आज रात में चाहता हूँ वही 3 नसीहतें हम भी बोलो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी आवाज नहीं आ रही, बोलो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। हजरत सिद्दीक एक स्टूडेंट की तरह सामने बैठे थे, कहा आपका एहसान होगा वो 3 बातें मुझे भी बता दो, क्योंकि दरमियान में कोई वास्ता नहीं है, मैं सुन रहा हूँ आपसे और आपने सुना है डायरेक्ट जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुनने के लिए दरमियान में बहुत वास्ते होते। जैसे आपके सामने बुखारी शरीफ होगी, आपके सामने मुस्लिम आएगी, आपके सामने तिरमिज़ी शरीफ होगी, आपके सामने अबू दाऊद होगी, आपके सामने मुअत्ता मालिक होगी, आपके सामने मुअत्ता मोहम्मद होगी, आपके सामने मुस्नद अहमद होगी, बहुत सारी हदीसों की किताबों के नाम है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमने इनसे सुना, इन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, कहाँ जाकर फिर नाम आएगा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हज़रत सिद्दीक फरमाते हैं ये जंगल में मेरे से बड़ा, ये जमीन पर मेरे से बड़ा खुशनसीब कौन होगा कि मैं डायरेक्ट सुन रहा हूँ जिन्नात से, और वो जिन ने डायरेक्ट सुना है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो बहुत बड़ी बात होगी, आप बताओ ना। अब उन्होंने कितनी बातें बताई, कौन कौन अमल करे? अमल करने वाले हो तो मैं सब ये बातें शुरू करूँ, करेंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कितनी बातें? सबसे पहली बात क्या थी मालूम? वो जिन्नात ने कही कि मेरे नबी ने मुझे कहा कि एक जिंदगी में इरादा कर लो कि जहां तक हो सकेगा कलमे की मेहनत करता रहूंगा, दावत, तबलीग, आना जाना, करीब दूर, दिन रात एक ही काम, लोगों को भलाई का हुक्म देता रहूंगा, बुराइयों से रोकता रहूंगा। कौन कौन तैयार है उसके लिए हाथ ऊपर करे। अपनी जिंदगी का मिशन बना लो कलमे की मेहनत, बोलो जिंदगी का मिशन कलमे की मेहनत, दावत, तबलीग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या आज मेरे दोस्तों अभी जो बच्चे ने यहाँ पर आकर पढ़ा सूरह मुज़्ज़मिल का रुकू पढ़ा, आप सोचो ये हमारे बच्चे कितने दारुल उलूम में पढ़ते हैं, कहाँ उनकी माँ उनके साथ होती है, उनके अब्बा उनके साथ होते हैं, उनको घर का खाना मिलता है, उनको घर का पानी मिलता है, उनको घर में उनको बुखार आता है तो क्या माँ उनके सर पे हाथ रखने वाली होती है?
کیا ابا ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہوتے؟ نہیں، بیچارے 2 مہینہ 3 مہینہ مدرسے میں پڑھنا پڑھانا، اللہ کے راستے میں جانا، امر بالمعروف، بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا. کیا کہا معلوم ہے؟ وہ جنات کی بات سننا. کہا اللہ کی قسم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. پہلی بات انہوں نے کہی کہ جتنا ہو سکے کلمے کی محنت کرنا، دعوت کرنا، تبلیغ کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہیں عن منکر کرنا. وہ جنات کہتے میرے نبی نے یہ کہا، یہ کرو گے اللہ چاروں طرف سے تمہاری حفاظت کرتا رہے گا. حفاظت ملے گی محنت پر، دعوت و تبلیغ کی محنت پر کیا ملے گی؟ اچھا، اور یہی بات قرآن میں بھی لکھی، لیکن ہماری نظر قرآن پر ہوتی نہیں. پارہ نمبر 6 بولو، پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر یہ دعوت کا کام ہوگا، یہ تبلیغ کا کام ہوگا. بولو لا الہ الا اللہ کی محنتیں ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی محنتیں ہوگی، سیرت مصطفیٰ پر محنتیں ہوگی، بھلائی کا حکم دیتے جاؤ گے، برائیوں سے روکتے جاؤ گے. واللہ یعصمک من الناس. تم یہ کام کرتے جاؤ گے، اللہ آسمانوں سے حفاظت کرتا چلا جائے